यस अदनान। अच्छा ऐड नहीं हो आप। देखो अभी हम शेयर कर रहे हैं तो आप सब लोगों को कोड मिलेगा, बट उसके लिए गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कर लेना। तो एक मिनट जस्ट हम शेयर कर दें। आपको गूगल क्लासरूम की स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास? आई होप कि आपको ये विजिबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोड है, आप इससे ऐड हो जाओ जो लोग नहीं ऐड है। आपको कोड विजिबल हो रहा है? यस मैम। ओके नैना ऐसा करो बेटा, जस्ट कॉपी, नोट डाउन दी कोड एंड राइट इट डाउन इन दी चैट बॉक्स। ओके मैम। और ऐसे करते हैं, आई विल कॉपी द लिंक इन द चैट बॉक्स। मैम आई डिड दैट। ओके थैंक यू बेटा। I will, I also pasted the Google Classroom link. So the students who are not added, please join the link. Okay, class. The students who are still not joining the Google Classroom. Yes, Nana. Ma'am, you also share the link in the group so that those who are not attending the class, they can also join. Yes, yes. I have just pasted. Is it not visible? I have just shared the link in the chat box. Now it is visible. Visible, huh? Okay, then fine. Even in the link, you just see the link. If you see the link closely, the last which is 2M4F6KP, it is the code. You can also join with the code or just go with the link. Okay, students. Okay, let's start our lecture. And we already talked about the exams, sessional test. First and second unit on Friday, and third and fourth unit will be on Saturday. Next Friday, next Saturday. Okay, class. And the test will be held by the Google form, and the timing will be same. Okay, as of our class timings. Yes, Nana. Ma'am, it will be MCQ. Yes, yes. So, ma'am, when you will share the question paper, we just take the answers and you can send them directly. Yes. Just submit the. No, you have to just submit the full test in Google Classroom. Okay, ma'am. Okay. The All the link. tests are conducted on the online mode or offline mode? Online. My tests of business communication will be online. Okay. Okay. And the timing will be the same as of our class timings. Okay. तो जो हमारी क्लास की टाइमिंग्स है सेम टाइमिंग्स रहेंगी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. फाइन.
first and second unit, or and I have already shared. Let me just make you visible. See, I have shared the unit 4. So you have already all the units and the links. If you have doubts, you can go to the YouTube link and review the classes. Or I have already attached the units, all the units till 4th unit. So you can also go and check out these PDF notes, lecture notes. Okay, then now we have to start our lecture. ओके क्लास, तो ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। जो अभी लेक्चर में अभी ऐड हैं स्टूडेंट्स, उनमें से जो भी लोग अभी तक गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है, वो ऐड हो गए ना। अभी तो नहीं ऐड हुए, तो आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक एंड द कोड बाय नैना, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। Okay class, let's start our lecture, and students, you can also mention your attendance in the chat box. Okay, class. This is our fifth unit and the last unit of business communication. The first topic of business communication, unit fifth, is modern forms of communication. See, we are living in the 21st century, or we can say that we are having a lot modified information technology or artificial intelligence system, and communication system is upgraded. अभी करंट टाइम में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। अगर हम लोग सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स की ही बात देखें, तो पास्ट 10 ईयर्स में मेल्स करना उतना ट्रेंडी नहीं था, बट अभी क्या हो गया है, आपका एक डिजिटल एड्रेस, एवरीवन हैज अ डिजिटल एड्रेस। हम सबका अपना एक डिजिटल एड्रेस है जिसे हम ईमेल्स कहते हैं। अलग अलग, चाहे आप जीमेल पे बनाए या और किसी याहू पे आपकी मेल्स होती हैं, आउटलुक पे होती हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपनी ये डिजिटल एड्रेस बनाते हैं। और जिस तरह से ये एक आपका एड्रेस का फॉर्म है, और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें थ्रू दी ईमेल आईडी आती है। इवन इफ यू हैव टू कम्युनिकेट विद दी अदर एप्स, अगर जो आपके मोबाइल फोन में और एप्स हैं या उनकी फैसिलिटी भी अगर आपको चाहिए, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये उसी तरह काम करता है। सिमिलरली, इफ यू वांट टू, जैसे हम लोग होता है ना कि हमारा एड्रेस हमारे लिए आइडेंटिटी की तरह काम करता है, और अगर हमें कोई फैसिलिटी चाहिए तो हम अपने एड्रेस प्रूफ देते हैं। सिमिलरली, अगर हमें कोई एप्लीकेशंस पे जाना है, उनका यूज करना है, या और मेंबरशिप लेनी है किसी वेबसाइट की, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज करनी है, ठीक, एजुकेशनल वेबसाइट पे जाना है, उसको पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमें ईमेल आईडीज। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अभी के सिनारियो में, तो अभी के सिनारियो में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ ओरल, रिटन और वो जो होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो वो ट्रेडिशनल वे ना होके अब हम काफी एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में रन कर रहे हैं। इवन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपना खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, सो दैट कि उनके आपस की जितनी भी बैरियर्स हैं वो मिनिमाइज हो सके, इजीली सारे उनकी एक्टिविटीज रन हो सके। और कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया है अभी, और उसमें टेक्नोलॉजी को अगर हम ऐड कर देते हैं, वो इतना ज्यादा यूजफुल टूल हो गया है। क्योंकि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थोड़ा भी लेट पहुंचती है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, आपके पास शेयर्स है, आपको वो शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी लेट आती है इंफॉर्मेशन कि शेयर्स की वैल्यू डाउन होने वाली है या हो रही है, और आप तब उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं अर्न हो पाएगा। यानी कम्युनिकेशन जो हो गया इतना नीडेड हो गया अभी करंट टाइम में, इतना जरूरी हो गया और इम्पैक्टफुल हो गया है
कि हमें, आप देख रहे हो कि उस कम्युनिकेशन सिस्टम में इतने सारे सिर्फ कम्युनिकेशन के ही टूल्स हो गए हैं जो हमें अलग अलग स्पेस में, चाहे वो डिजिटल स्पेस हो या और जितने भी एनालॉग स्पेस हो, वहां पर हमें उसकी नीड होती है। ओके, तो अब आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो जितने भी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उन पे ही बात करेंगे। कई सारे हमने इसमें मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी कई सारे आप और ऐड कर सकते हो। अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द पास्ट फ्यू डेकेड्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट प्रिंटेड मैसेजेस, पिक्चर्स, इवन लाइव परफॉर्मेंस टू ऑल comers of the world with speed. With a single touch, you can send communication to a number of destinations, not only large business houses, but even medium, small, and ones use them in their day-to-day working. जितने भी हमारे पास ये सोर्सेज हैं, मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, दे आर और वेरी यूजफुल और बिजनेस में तो जैसे भी कम्युनिकेशन तो बैकबोन ऑब्वियसली है ही, और कम्युनिकेशन के साथ साथ अब जैसा अभी करंट टाइम में टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फॉर मॉडर्न, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मॉडर्न में भी क्या हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं जनरेशन, ये जो गैप हो गया इतना कम हो गया है, तो मॉडर्न भी अब मॉडर्न नहीं, वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो फैक्ट्स, पहले लोग फैक्ट्स को ऑब्वियसली इम्पोर्टेंटली यूज करते थे, अभी हम लोग फैक्ट्स को उतना यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू हम वाया इंटरनेट मैसेजेस और इम्पोर्टेंट चीजें सेंड कर सकते हैं। बट स्टिल जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अच्छे से काम नहीं करती है, वहाँ पे अगर जो थ्रू वायर फैसिलिटी है, वहाँ पे फैक्स अभी भी काम करते हैं और इफेक्टिवली ऑफिस के लिए या ऑफिशियल चीजों के लिए फैक्स, और फैक्स का फुल फॉर्म फैक्समैन, ठीक है। ये एक मशीन आपको यहाँ पर विजिबल होगी, दिख रही होगी, इसमें प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। So, a fax is a facsimile machine carries printed messages, words or pictures in photocopy form from the sender instrument to the receiver instrument. यानी आपके पास दो मशीन्स होनी चाहिए, एक सेंडर के पास और एक रिसीवर के पास। सेंडर उसमें इंफॉर्मेशन डालता है, जैसे स्कैन कर रहे होते हैं पेपर फॉर्म को, वैसे स्कैनिंग में डालते हैं, और जब रिसीवर के पास रिसीव होता है तो जैसे प्रिंट आउट निकल रहा होता है, तो वैसे ही प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास या जेरॉक्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो नॉर्मली इसकी रेंज होती है, पैरामीटर होता है जो पेपर में और थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस। अगर हम लोग बात करें बाकी हम लोग जो आजकल एप्लीकेशन व्हाट्सएप से फोटो सेंड करते हैं, उससे थोड़ा स्लो होता है, बट वैलिड अभी भी है ये। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस क्या है, यूनिवर्सल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। देन सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, ऑब्वियसली आप अपने फैक्स मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम से डायरेक्टली आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और जहाँ पे थोड़ी सीक्रेसी जरूरी होती है, इम्पोर्टेंस या ऑफिशियल काम जरूरी है, वहाँ पे अभी भी फैक्स मशीन काम कर रही है। एडवांटेज ओवर टेलेक्स, टेलेक्स मशीन भी सिमिलर है इसी तरीके से। अभी हम लोग अगर टेलेक्स की बात करें, सी टेलेक्स का ये आप ये कह सकते हो कि टेलेक्स मशीन का ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। जैसे फोटोकॉपी मशीन्स में भी आप देख रहे हो ना, पहले फोटोकॉपी हुआ करती थी तो अलग तरीके से होती थी, अभी फोटोकॉपी मशीन्स के भी, जेरॉक्स मशीन के भी एडवांस वर्जन हो गए। उसी तरह ये भी सिमिलर टेलेक्स मशीन का भी एडवांस वर्जन है। क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस इट हेल्प्स quickly sending messages. Disadvantages क्या है, it is expensive compared to email and post, yes, क्योंकि आपको मशीन खरीदनी होती है एंड मशीन्स के रिपेयरिंग कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस होती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ये। अगर ईमेल्स की हम लोग बात करें और लेटर या पोस्ट की हम बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा ये हमारे लिए कॉस्टली होता है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है समटाइम्स द रिसेप्शन इज ब्लर्ड ड्यू टू चैनल डिफेक्ट्स। और नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग बैरियर्स की बात करें तो जैसे कई बार होता है ना, वायर टेलीफोन अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन बात कर रहे होते हैं, और अगर इंटरनेट वेदर कनेक्शंस, वेदर की वजह से कनेक्शंस बेटर काम नहीं कर रहे होते हैं, कंजेक्शंस होते हैं,
प्रॉब्लम्स होती है। तो सिमिलर इसमें भी वही नेटवर्क वाला इशू आता है। अगर प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, चैनल में डिफेक्ट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में डिफेक्ट आ रहा है, या कोई मैकेनिकल एरर है मशीन्स में, तो जो फोटोकॉपी या जेरोक्स निकलता है उसमें थोड़े से ब्लरी इफेक्ट्स आ जाते हैं, क्लियर मैसेज नहीं विजिबल होता है। At the receiving end, the message is printed at the receiver's cost. इन केस अनवांटेड मैसेजेस, ऐसा कई बार होता है ना कि आपको कोई मैसेज आपने भेज तो दिया है बट सामने वाले को वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है और आपको वो नीडेड नहीं था, बट स्टिल क्योंकि वो प्रिंट फॉर्म में आता है तो ऑब्वियसली रिसीवर के एंड से भी कॉस्टियर पड़ता है, आपको भी उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं इंटरनेट एंड ईमेल। हम लोग सभी अभी करंट टाइम में यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे ना कि वाया हम लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं, आप सब अभी जीमेल का यूज कर रहे हो। जी सूट का भी हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्जन, जिसके थ्रू हम लिंक करते हैं, हमारी क्लासेस डाउनलोड हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब इसके बहुत सारे अभी कहा जाए बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर आप जीमेल ओपन करते हो ना तो साइड में जब उसके बाय प्रोडक्ट्स में जाते हो तो उसके थ्रू आप यूट्यूब के लिंक पे जा सकते हो। जैसे भी हमने गूगल क्लासरूम आपको विजिबल कराया था, गूगल क्लासरूम पे है, सिमिलरली गूगल डॉक्स है। ठीक है, और उसके बाय प्रोडक्ट्स में गूगल फॉर्म है। और अभी जब हम लोगों ने रेज्यूमे वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने आपको दिखाया था ना कि उस पे भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, गूगल डॉक्स पे भी, वो भी इसका बाय प्रोडक्ट है जीमेल का ही, अगर हम उस पर देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना एक्सेल शीट्स हैं, यानी बहुत सारे और बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जीमेल के साथ रहते हैं। और आप सिर्फ एक, अगर आप सिस्टम पे यूज करो तो आपको कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप मोबाइल फोन में यूज करो तो आपको अलग से एक एप्लीकेशंस ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट ईमेल्स की। इंटरनेट में भी आप देख रहे हो ना कि हमारे यहाँ अभी 5G का कहा जाए ट्रायल बेसिस काम चल रहा है और कई जगह 6G आ गया है। तो ऑब्वियसली इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है अभी, और नीडेड भी है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में ऑलरेडी हर किसी को इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए थी, क्योंकि उनका काम सारा ऑनलाइन चल रहा था। तो आप देख रहे हो ना अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग टाइप्स के आपके पास प्लान्स आ गए हैं। तो ये जो इंटरनेट फैसिलिटी होती है इसमें भी एक वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो काम करती हैं, स्पेक्ट्रम्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, और ये आपस में बिना किसी वायर के सिस्टम्स को कनेक्ट करती हैं। government offices, agencies, business houses, educational institutions, even individuals frequently using internet facility। और इस इंटरनेट फैसिलिटी से आप अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और अभी करंट टाइम में तो इंटरनेट के जो, अगर हम लोग एडवांस की बात करें तो आप इंटरनेट से सब कुछ कर सकते हो। आप मूवीज देख सकते हो, आप किसी को कॉल कर सकते हो, आप किसी से वीडियो चैट कर सकते हो, है ना। मिल नहीं पा रहे हो तो आप वीडियो के थ्रू आप उनको देख सकते हो, पिक्चर्स सेंड कर सकते हो, इमेजेस सेंड कर सकते हो। ठीक है, चैट्स कर सकते हो। तो कितने मतलब होता है ना कि बहुत, इवन सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो ना कितने तरह की अलग अलग चीजें स्टार्ट हो गई हैं। इवन गेम्स में भी आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, और आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो मे बी, इनमें कहा जाए ना कि ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज होती है वो उसमें काम ही नहीं होती। जैसे आप कोई यूएस का आपका कॉम्पिटिटर है, आप जिससे जिससे आपका कंपटीशन चल रहा है गेम्स में, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इंटरनेट और ईमेल्स के थ्रू मिलती हैं। ईमेल्स की अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली आपका करस्पॉन्डेंस बहुत इजी हो जाता है। यू कैन इजीली रिसीव और सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस on someone's computer, laptops or mobile phones, or emails are easy and fast. जस्ट सेकेंड्स क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करते हो GUI पे, जो भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो आपके पास आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। और आप इवन फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप में सिंगल टिक मैसेजेस मैसेज सेंड हो गया, ठीक है, डबल क्लिक मैसेज रिसीव हो गया भाई, सामने वाले के मोबाइल फोन में जिस पे भी वो यूज कर रहे हैं उसमें पहुंच गया। ठीक है, और इफ इट कन्वर्टेड इनटू ब्लू,
देन हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई मैसेज हमारा रीड भी हो गया है। तो बहुत फास्ट एक्शंस हो रहे हैं और हमें अलग अलग ये जो GUIs हैं इनके थ्रू करेक्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी अवेलेबल हो जाती है, डिलीवरी रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट। लैंग्वेजेस ऑब्वियसली, जो भी हम इंटरनेट में लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब हम कोई भी अलग तरह की लैंग्वेज, इवन आप देखते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज उसमें यूज कर सकते हो, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इजी हो जाता है, रीजनल लैंग्वेज के भी आप यूज कर सकते हो उसमें। देन आप जैसे हम लोग ईमेल्स में CC हम लोगों ने बात करी थी ना कि जिसको कार्बन कॉपी कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हो, रिप्लाई करते हो तो ऑलरेडी जो आपका मैसेज की जो चेन चली आ रही है, ठीक है, जो थ्रेडिंग चली आ रही है वो कनेक्टेड रहती है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि किस ईमेल का रिवर्ट है या रिप्लाई है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज we don't have to cut the trees for the papers। तो हमें इंटरनेट फैसिलिटी या ईमेल्स के लिए हमें पेड़ों की जो पेपर्स की नीड होती है वो हमें नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे इसीलिए इसको बोलते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट भी चली थी आइडिया की, अभी तो आइडिया वोडाफोन में मर्ज हो चुका है, अगर आपको याद हो तो उसमें आया था ना कि बिल्स, आप ऑनलाइन अपने बिल्स अगर ले लेते हो तो आपका हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, का ट्री को आप सेव करते हो उसके बिहार पे, ऐसा कुछ आया था। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। ओ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है वायरस, ठीक है। लोगों के अब सिस्टम हैक हो जाते हैं, ईमेल्स हैक हो जाती है, वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, अलग अलग हैकर्स काम कर रहे होते हैं, वो वायरसेस भेज के क्लोनिंग कर लेते हैं आपके अकाउंट्स की। अभी करंट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी वेबसाइट हैक होने का भी आया था न्यूज, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप समझ रहे हो बड़े लेवल पे करते हैं, कुछ इल्यूमिनाटी करके मे बी उनका ग्रुप है, और ये बड़े लेवल पे काम करते हैं, इनकी आइडेंटिफी की अगर हम लोग बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, और ये कौन है नहीं मालूम, जस्ट अगर भी आपने अगर इसके बारे में सर्च किया हो, इल्यूमिनाटी करके ही है आई थिंक नाम है। ठीक है, मैम तो ये एनोनिमस है। अनोनिमस भी है, इल्यूमिनाटी करके भी है, ओके, अनोनिमस भी है, फाइन, थैंक यू। ओके, तो जो भी इस तरह के ये ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब कई का ग्रुप्स काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये जो भी इस तरह के जो लोग बोलते हैं ना, जब क्लेम करते हैं कि वी हैव सिक्योर्ड सिस्टम, वी हैव सिक्योर्ड और फुल्ली, जब भी इस तरह की चीजें करते हैं तो उनके क्लेम्स को डीक्लेम करने के लिए ये हैकिंग करते हैं, और उनको बताते हैं कि नहीं, अभी भी आप सिक्योर नहीं हो, यू हैव टू, आपको और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और ज्यादा आपको क्योर करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये हम दिखते रहते हैं ना, वायरसेस, फिर एंटी वायरसेस बनते हैं, एंड सॉफ्टवेयर अलग अलग चेंज किए जा रहे होते हैं, ये सब चीजें करी जा रही होती हैं। ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वायरस, ठीक है, और इसके भी बहुत सारे होते हैं, पता नहीं, स्पूफिंग, और बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, क्लोनिंग, और बहुत सारे और होते हैं, अभी नाम उतने नहीं याद आ रहे जो डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उसमें बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, कभी अगर गलती से क्लिक भी हो जाता है ना, या एक बार भी आप उसको विजिबल देख लेते हो, जस्ट कि उस पेज पे जाके आप देख लेते हो भाई किस चीज की एडवर्टीजमेंट है, तो उसके आप देखते हो कि सब्सक्रिप्शन आने लगते हैं आपके पास में, ठीक है, यानी अनवांटेड ईमेल्स आने लगती है, तो कुछ तो फिल्टर आउट के स्पैम में चली जाती हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो आपके ईमेल में पड़ी रहती हैं, तो जब तक आप उनको अनसब्सक्राइब नहीं करते हो तब तक आपके पास इस तरह की ईमेल्स आती रहती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक थ्रेट बना रहता है। और अभी करंट टाइम में जैसे ऑनलाइन हर चीज हो रही है, आपका ईमेल सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, उतना ज्यादा हमारी एक्सेस जो होता है वो बाकी लोगों को, जो इस तरह के हैकर्स होते हैं, उनको वो एक्सेस आसानी से एक्सेस मिल जाता है। ओके,
अगर आपकी साइट्स स्ट्रांग नहीं है, बार बार आप अपने पासवर्ड्स चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। ओके, कई बार एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ज्यादा सिक्योर पासवर्ड बनाने के चक्कर में पासवर्ड्स भूल जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। ओके, देन हमारा जो मेल बॉक्स है वो फ्लडेड हो जाता है बाय दी, हम लोग कहेंगे ना कि अनवांटेड ईमेल्स ऑलरेडी फ्लडेड रहता है, तो हमें बहुत सर्च करने में भी उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये दीज आर ऑल दी डिसएडवांटेजेस एंड मेनी मोर डिसएडवांटेजेस यू कैन आल्सो एक्सप्लोर बाय यूजिंग दी डिफरेंट डिफरेंट एप्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑलरेडी हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये दोनों ही हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बस फेस टू फेस बात नहीं होती है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग में आप क्या करते हो कि आप किसी को फेस टू फेस देख भी सकते हो। ओके, तो इजी होता है। आप अभी पेंडेमिक के टाइम में तो ऑलरेडी आप देख रहे हो ना कि इवन हर एक जगह, हर एक इम्पोर्टेंट जगह मीटिंग्स हो रही हैं, इवन इंटरव्यूज भी हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज हैं वहाँ पर वो सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही हैं, बिकॉज उनकी वर्किंग्स, जो कहते हैं ना कि बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया है, वर्किंग का स्टाइल चेंज हो गया है। तो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, तो नो टाइम कांस्टेंट, यस, टाइम जोन का कांस्टेंट इसलिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मॉर्निंग है, अगर हम लोग चाइना यूएस की बात करें तो ऑलरेडी अपोजिट टाइम चल रहा होता है हमारे से, ठीक। तो टाइम का कांस्टेंट नहीं होता है। अभी हम फिजिकल अगर बात करें तो हम यहाँ से जब ट्रैवल करके जाए मीटिंग्स के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे अगर दिन होगा तभी हमारे लिए प्रॉपर होगा मीटिंग्स करना। बट अगर हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट की उतनी वैल्यू नहीं होती है, और कभी भी हम अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास है ड्रामेटिक ट्रैवल सेविंग। और ये तो ऑब्वियसली होता है कि आपके पास जो हैट्रिक शेड्यूल होता है ना, आप अपने ही घर में रहते हुए आप एक ही दिन में आपके पास, फॉर एग्जांपल हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो चाइना के हैं, यूएस के हैं, ठीक। तो हम एक ही दिन में चाइना एंड यूएस दोनों जगह की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अगर हम लोग फिजिकल पैरामीटर की बात करें, जब ट्रेवल्स की बात करें, तो तब तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे एक ही दिन में दो जगह। तो ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसका बेस्ट सोल्यूशन है। इजी कम्युनिकेशन इजी होता है। अब तो आप देखते हो कि जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उसमें वो नीचे आपको सबटाइटल भी देता है, ठीक है। सबटाइटल से क्या हो जाता है, कई बार एक्सेंट नहीं क्लियर होता है, स्टिल आप वहाँ सबटाइटल में पढ़ सकते हो, तो वो इजी हो जाता है। और आप जैसे अभी हम लोगों ने स्क्रीन शेयर करके आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप विजिबली देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक व्हाइट बोर्ड भी आता है, वो भी शेयर कर सकते हैं। उसमें अगर पेन से जो कुछ आप ड्रॉ करना चाहो, बोर्ड की तरह होता है। टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई भी मीडिया वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी फैसिलिटीज इन दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यस। इस तरह के बैरियर्स को जब हम हटा देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इजी हो जाता है हमारे लिए। So if you talk about disadvantages, lack of personal interaction, yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी हम बैंकिंग में भी देखते हैं ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या हो गया, पहले क्या होता था, ऑनलाइन नहीं होती थी चीजें, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला रहता था ना, कि जैसे आजकल ऐड आ रही है, अगर आपने ऐड देखी हो टीवी पे, तो उसमें पापा एक डैड है और उनकी डॉटर है, तो ही इज आस्किंग कि बेटा ऑनलाइन क्यों परचेज करते हो, और ऑनलाइन ये क्यों करते हो, ऑनलाइन वो क्यों करते हो, मैं तो शुक्ला जी से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। तो वो जो एक पर्सनल टच वाला होता है ना, कि यार बताओ मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा, है ना। हम लोग बैंक जाते थे, पूछते थे कि मेरी इतनी अर्निंग है, मेरे लिए लोन लेना ठीक रहेगा, मेरे लिए ऐसा ठीक रहेगा। वो जो एक पर्सनल टच है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वो पर्सनल टच वाली बात नहीं रहती है। इफ यू आर फीलिंग लो, अगर आप परेशान हो, वो जो एक होता है ना, जो सिंपैथी वाला या एम्पैथी वाला एक प्रोजेक्शन होता है, वो नहीं हो पाता, ठीक है। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, या आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम ये सब चीजें नहीं देख पाते। जैसे अभी भी क्या होता है,
हम आपको पढ़ा तो रहे हैं, बट अगर क्लास में हो रहा होता है ना, तो जब हम आपके फेसेस देखते हैं या आप हमें देख पाते हो, तो क्या होता है, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, समझ आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप मेरे से कुछ बताना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ शेयर करना चाह रहे हो। तो ये कांस्टेंट जो हो गया है, कहीं ना कहीं ये हर्डल्स हो गए हैं हमारे लिए। वो जो एक पर्सनल अटैचमेंट होता है वो नहीं बन पाता, या रेपो होती है वो नहीं बन पाता, जो बेसिकली आपके बॉडी लैंग्वेज से, जो जेस्चर पोस्चर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो नहीं मिल पाती। तो लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, देन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यस। कई बार क्या होता है कि पीपल आर डिसएसोसिएटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, लोग उससे रेजिस्ट भी करते हैं। इवन कई लोगों को वो उतनी क्लियरली समझ भी नहीं आती है। सम पीपल आर टेक से भी, कुछ को इंटरेस्ट होता है तो ऑब्वियसली वो ट्राई करते हैं नई नई चीजें करने में, बट स्टिल कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्राई तो करते हैं और बहुत हार्डली ट्राई करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कैच देम। तो वो एक इशू है। इवन कई बार नेटवर्क फेलियर्स हो जाते हैं, कई बार और आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरा लैपटॉप जैसे ही हमने ओपन किया वो अपडेट्स लेने लगा, ठीक है। तो वो इस तरह के टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइम जोन्स। यस, जो इंटरनेशनल टाइम जोन्स हैं वो वाले इश्यूज तो रहते ही हैं कई बार, ठीक है। आपका डिनर का टाइम हो रहा है, आपका लंच का टाइम हो रहा है, और हमारी मीटिंग्स चलती जा रही हैं, ठीक है, या और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो टाइम जोन वाला है ये तो रहता ही है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप। यस, बड़ी चीजों के लिए, छोटे सेटअप्स के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही अगर हम लोग क्लासेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको टास्क दिया था, यू हैव टू मेक अ पीपीटी। स्टिल कई बच्चे ऐसे थे भाई जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, या जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने पीपीटीज बना पाए, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है वो। आपके पास कॉस्टली सेटअप, आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा पीपीटीज बनाने के लिए, तो वो इशू रहेगा ही रहेगा। तो कॉस्टली सेटअप है, जिनके पास अवेलेबिलिटी है, और इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपको सेटअप की जरूरत होती है, आपका सिस्टम मैनेजर ये सारे काम लिखता है, ठीक। तो ये सेटअप की नीड भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है, और ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टेलीफोन्स की बात करें तो हम सब जानते हैं टेलीफोन्स पहले के और अब में टेलीफोन्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। इवन वियरेबल गैजेट्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे वियरेबल गैजेट्स आ गए हैं, जिसमें टेलीफोन्स भी आप वियर कर सकते हो। और अब जो हमारी रिस्ट वॉचेस आ गई हैं उसमें से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। यू कैन टाइप मैसेजेस, यू कैन पिक कॉल्स, ठीक है, अलर्ट्स आते हैं आपको। तो बहुत फास्ट चेंजेस आ चुके हैं, और बहुत कहा जाए कि वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज हमें अपने मोबाइल फोन्स में मिलने लगी हैं। जैसे बहुत अलग अलग तरह के अभी हमारे पास, अगर हमारा मोबाइल एक अभी, हाँ अभी हम कल, हाँ कल ही हमने एक वो पढ़ा है अभी, रिसर्च एक निकली है कहीं की। तो वहाँ की साइकोलॉजिकल जो रिसर्च हुई है उसमें ये पूछा गया कि अलग अलग सिचुएशंस दी गई, और उस सिचुएशंस में क्या क्या रिएक्शंस रहते हैं। तो टेलीफोन, सॉरी मोबाइल फोन्स अगर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये दिया कि एक किसी का मोबाइल फोन खो जाना कितना इम्पैक्टफुल होता है। तो वो इतना इम्पैक्टफुल होता है, इवन पीपल हैविंग हार्ट अटैक, तो जो जितना हार्ट अटैक में पेन होता है आपको, इतना पेन साइकोलॉजिकली होता है अगर आप अपना मोबाइल फोन खो देते हैं। क्योंकि अभी करंट टाइम में आपके मोबाइल फोन में आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स आप उसमें रखते हो क्लाउड में सेव करके, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी चीजें आपके मोबाइल फोन में। तो मोबाइल फोन खो जाना आपके लिए इतना ज्यादा पेनफुल हो सकता है, ठीक है। अभी एक रिसेंटली पढ़ा हमने, तो आप देख ही रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। और करंट टाइम में आप मूवी देख रहे हो, यानी जो हमें पहले होता था ना, फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें फ्रेंड्स बनाने हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करनी है। अब हमें फ्रेंड्स को रिप्लेस कर दिया है मोबाइल फोन ने। आपको बैंक जाने की नीड नहीं है, मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया है। आपको पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाने के लिए नीड नहीं है, मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आपको पेमेंट करने के लिए कैश की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया। तो आप देख रहे हो ना कि हर एक चीज को मोबाइल फोन रिप्लेस कर रहे हैं। इवन आपको मूवी देखने के लिए थिएटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन में आप
देख सकते हो। तो ये सारी चीजें थी जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी, ये हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो दीज आर ऑल दी मॉडर्न, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बहुत सारी के सारे इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हम नहीं जानते कि अभी थोड़े दिन बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाए। जैसे अगर अभी उस दिन हम देख रहे थे, तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने बोला है कि कम्युनिकेशन के लिए ही उन्होंने बोला है कि अब वो, जैसे अभी होता है ना कि लाइटिंग के लाइटिंग्स जो शो होते हैं, लाइट वाले शो होते हैं, कभी अगर आपने देखे हो तो उसमें हम लोगों को पूरा हर एक चीज थ्रू लाइट्स जब पड़ती हैं तो उनसे इमेज बनती है, वो सब चीजें। ठीक है, उन्होंने बोला है स्पेस में वो अगर कोई अपना नाम डिस्प्ले कराना चाह रहा हो, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, तो वो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो सी हाउ फास्ट वी हैव आवर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वी आर हैविंग। तो हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अब हम स्पेस पे भी वो एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल दी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे कल, उसमें कल्चरल और इंटर कल्चरल समथिंग ऐसा कुछ टॉपिक है अपना। ओके, एंड आई होप सबने अपनी अटेंडेंस दे दी होगी। स्वप्निल, अभिनव, देवेश, अभिनव, श्रुति, उत्कर्ष, गोविंद, लव, हुमना, शशि, दीपक, मनीषा, आशीष, अभय, अरम्य, दिव्यांशी, पारस, अश्विन, विपुल, अमन, कृतिका, आयुष, यश, यशवर्धन, प्रत्यक्ष, शिवानी, अदनान, नैना, कार्तिक, वंशिका, आंचल, मृत्युंजय, निखिल, अनुष्का, सुयश, तान्या, अस्तिका, ऋषभ, काजल, अमन, कार्तिकेय, पीयूष, अंजलि, श्रद्धा, सौरभ, शांभवी, वर्तिका, श्रेया, अर्पिता, मुकेश, भूमि, लक्ष्य, चंद्रमणि। ओके, and we also have Abhay, Paras, Anup, Rishabh, Arun, Shivam. Okay. I hope सबने अपनी attendance match. Okay, Faisal. Is there anyone else? Please do mention your attendance, beta. Okay, Aditi, Moni. Okay then. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, And ma'am. stay safe, stay healthy. Okay, Unnati.